اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ضلع جنوبی میں سینیٹری ورکرز ہڑتال پر چلے گئے۔ ملازمین نے KMC ورکشاپ میں گاڑیاں پارک کر کے تنخواہوں کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا۔ تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ ضلع جنوبی میں سینیٹری ورکرز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ 2 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر ملازمین سراپا احتجاج ہو گئے۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور چائنیز کمپنی کے تحت کام کرنے والے سینیٹری اور دفتری ورکرز نے کام چھوڑ کر ہڑتال شروع کر دی۔ سینیٹری ورکرز نے گاڑیاں KMC ورکشاپ میں پارک کی اور تنخواہوں کی فراہمی تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع جنوبی کے انچارج صلاح الدین کا کہنا ہے کہ چائنیز کمپنی اپنے معاہدے سے ہٹ رہی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ بروقت تنخواہ ادا کرے۔ صفائی نفس ایمان ہے اور یہ ہم لوگوں کو نفس ایمان پرووائڈ کرتے ہیں اس غند اور غلاظت کو اٹھا کر۔ ان کو وقت کے اوپر تنخواہ ملنی چاہیے۔ اس وقت پرائیویٹ ملازموں کو 2 مہینے 8 دن گزر جانے کے باوجود تنخواہ کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ ضلع جنوبی میں اس وقت 3000 سے زائد ورکرز کام چھوڑ کر ہڑتال پر ہیں۔ اگر ہڑتال ختم نہ ہوئی تو ضلع میں کچرے کے انبار لگ جائیں گے۔ کیمرامین کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21۔ جناح اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد رسول کے استعفے دینے پر جناح اسپتال کے ینگ ڈاکٹرز کا آج بھی پرامن احتجاج جاری رہا۔ YDA کے چیئرمین ڈاکٹر عمر سلطان کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر جناح اسپتال کا استعفی منظور نہ کیا جائے۔ جناح اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد رسول کے استعفیٰ دینے کا معاملہ طول پڑ گیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈائریکٹر جناح اسپتال کے حق میں پرامن احتجاج کیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر شاہد رسول کے دوبارہ عہدے سنبھالنے کا مطالبہ کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر عمر سلطان بولے، ڈاکٹر شاہد رسول پر دباؤ ڈالا گیا، ان کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، چاہے وہ ان سائڈ JPMC ہے چاہے آؤٹ سائڈ JPMC ہے، تو اس ED کو آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے، ان کا ریزائن واپس کرنا چاہیے، ان کو واپس سیٹ پہ بٹھانا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ED کا استعفیٰ نامنظور۔ ڈاکٹر سجاد نے کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا تو ہم آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے کہ اگر ان کی استعفیٰ منظور کی جاتی ہے تو ہم احتجاج کی طرف یقیناً جائیں گے، کیونکہ وہ پروفیسر شاہد رسول ہیں جو میرٹ پہ پروفیسر ہیں اور یہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، انہی کی وجہ سے JPMC کے پچھلے سال سے کافی مسائل حل ہوئے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد رسول کی واپسی کا مطالبہ تسلیم نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم موڈھو اچانک شاہ فیصل تھانے پہنچے ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی نے شاہ فیصل تھانے کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور ڈیوٹی پر تعینات عملے کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ SHO شاہ فیصل اور SIO ایڈیشنل IG کراچی کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل جی، ایڈیشنل IG کراچی نے اچانک وزٹ کیا ہے اور شاہ فیصل تھانے کا، جہاں پر جا کر تفتیشی حکام اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر دونوں کو مدعو کیا اور تفصیلات طلب کی، جس پر دونوں افسران نے تحقیقاتی ادارے کی جانب سے کی گئی کارکردگی اور SHO کی جانب سے آپریشن کی جانب سے جو کارکردگی اس پر تفصیلی تبریف دیا، رجسٹر چیک کیے، روزنامہ چیک کیا، FIR جو درج کی جاتی ہیں ان کے تمام امور کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل کراچی نے اور ایڈیشنل کراچی نے حالیہ دنوں میں شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر علاقے میں پولیس گشت کو مزید بڑھانے کی ہدایت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں مردم شماری کے دوران مکمل سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی جو ہے وہ مردم شماری کے عملے کو ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ پولیس چیف نے عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے عملے کو متحرک رہنے کا کہا گیا ہے، جبکہ SHO اور SIO کو بہتر کارکردگی پر سراہا اور شاباش دی۔ جی بہت شکریہ جاوید قائم خانی۔ کراچی کے غریب شہری سستی ادویات سے بھی محروم ہو گئے۔ ہول سیل میڈیسن مارکیٹ بولٹن کے نائب صدر عامر ملک نے ادویات کی قیمتوں میں 40% اضافے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ادویات کے ساتھ ساتھ سرجری کرنے والے آلات بھی مہنگے ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر میں ادویات کا بحران ابھی تھما نہیں تھا کہ قیمتیں بھی آسمان پر جا پہنچی۔ سٹی اسکین انجیکشن 5000 روپے اضافے کے بعد 10000 اور انسولین انجیکشن 600 سے بڑھ کر 900 روپے کا ہو گیا۔ کیلاموکس اینٹی بایوٹک 45 روپے اضافے کے بعد 240، جبکہ کالپول سیرپ 82 سے بڑھ کر 95 روپے کا ملنے لگا۔ ابھی تو موسٹ جو چل رہا ہے کہ سینڈوسٹیٹن انجیکشن ہے وہ مشکل سے 500-600 کا انجیکشن ہے اور 1000 روپے کا بھی کہیں پر اویلیبل نہیں ہے۔
सिटी स्कैन का इंजेक्शन है जो 5,900 रिटेल है, वो 10,000 में भी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अद्वियात के साथ साथ सर्जिकल आइटम्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। नेबुलाइजर और सेक्शन मशीन समेत सर्जरी करने वाले आलात महंगे होने से दुकानदार परेशानी में मुब्तला हैं। जो इम्पोर्ट है वो तो वैसे ही बंद है, इम्पोर्ट वाली चीज़ों पे तो इजाफा हुआ ही हुआ है। साथ इम्पोर्ट के नाम पर जो लोकल चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान में बन रही हैं उन पर भी है बीपी डायल। ये 1100 रुपये का हम बेचते थे, अब ये 2200 रुपये का 2000 रुपये का बिक रहा है। नेबुलाइज़र ये भी एक आम ज़रूरत है, सर्दियों में रनिंग आइटम है सबसे ज़्यादा, इस पे भी कम से कम 1500 रुपये का ये इजाफा हुआ है। होलसेल मेडिसिन मार्केट बोल्टन के नायब सदर आमिर मलिक ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। कहा कि अद्वियात गरीब की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। तकरीबन मेडिसिन और सर्जिकल के आइटमों में 40% का इजाफा हो चुका है, और अभी तक जो कि मैं समझता हूँ ये इजाफा जो है हमारे लिए बहुत ही मुल्क के लिए ख़तरनाक है कि इतना ज़्यादा डॉलर ऊपर होना, और उसके बाद जो है तमाम अद्वियात इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि किसी गरीब आदमी के भी कुव्वत व ख़रीद से बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने भी तशवीश का इजहार किया है। सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी फंड खत्म करने की मंजूरी दे दी। इकबाल दैथो को सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला हो गया। सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम शरीक हुए। सिंध काबीना ने 3 साल कबल शुरू होने वाला कोरोना इमरजेंसी फंड बंद करने का फैसला किया। इजलास को बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में इस फंड में 3 अरब 70 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जिसमें से 3 अरब 20 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हो गए। अकाउंट में मौजूद 3.5 करोड़ रुपए सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर खर्च करने की मंजूरी दे दी गई। सिंध काबीना ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 3264 मुलाजमीन को ग्रेड 5 से ग्रेड 17 तक अपग्रेड करने का फैसला किया। शहीद मिल्लत रोड पर KMC इंक्रोचमेंट सेल ने ऑपरेशन के दौरान सर्विस रोड और नाले के अतराफ कारखाने, दुकानें मस्मार कर दी। सीनियर डायरेक्टर KMC इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत की निगरानी में शहीद मिल्लत रोड जमशेद टाउन में ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन के दौरान कारखाने, दुकानें, थैले मिस्मार कर दिए गए। बलोच कॉलोनी नाले के अतराफ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। KMC हुकाम के मुताबिक तजावुजात के बाइस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया था। सिंध हाई कोर्ट ने 11 बल्दियाती यूनियन कमेटियों में इंतखाबात कराने से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू 11 बल्दियाती यूनियन कमेटीज में इंतखाबात कराने से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि 11 नशिस्तों पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात नहीं हुए थे। उम्मीदवारों के इंतकाल और दीगर वजूहात की बिना पर इंतखाबात नहीं हुए थे। नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया गया। मेयरशिप के अमल को मुकम्मल करने के लिए फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन को फौरी 11 नशिस्तों पर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात के प्रोसेस को मुकम्मल आगे ना बढ़ाने के खिलाफ जमात इस्लामी नाज़िमाबाद टाउन कराची ने DC सेंट्रल ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। इंतखाबी अमल को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के अमल को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा लिए जमात इस्लामी नाज़िमाबाद टाउन मैदान में आ गई। जमात के मुंतखब नुमाइंदगान DC सेंट्रल ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हुए। कारकुनान ने मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। इस मौके पर जमात इस्लामी नाज़िमाबाद के रहनुमा काशिफ हाशमी ने कहा कि सरकारी फंड्स में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की जा रही है। एक तरफ बल्दियाती प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया जा रहा, दूसरी जानब करप्शन की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नाज़िमाबाद के मुंतखब नुमाइंदे इलाके में करप्शन होने नहीं देंगे। इलाके में होने वाले बल्दियाती काम की मालूमात अब मुंतखब नुमाइंदों के पास होनी चाहिए, जिससे बाला हुकाम यकीनी बनाएं। और खबर शामिल करेंगे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के 20वें जलसा तकसीम असनाद में 842 तलबा व तालिबात को असनाद तफवीज़ की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के आला तालीम के लिए खिदमात को अहम करार दे दिया। ताबिश मीर की रिपोर्ट।
ضیاءالدین یونیورسٹی کی کنوکیشن میں PhD, MS, MD, MPhil سمیت دیگر شعبوں سے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ناصر حسین شاہ نے طلباء کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ کی تعلیم کا سفر تو اختتام پذیر ہوا، لیکن پیشہ ورانہ زندگی ملک کی ترقی کے لیے اہم ہوگی۔ I encourage you to be bold, to take risks, to chase your dreams and never give up. Once again, congratulations on this wonderful achievement. I wish you all the best as you embark on the next chapter of your life. ضیاءالدین یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا، گریجویشن کے بعد کے سفر میں آنے والی رکاوٹوں سے نہ گھبرائیں اور چیلنجز سے مقابلے کے لیے علم اور مہارت سے کام لیں۔ The journey has been arduous. The journey has been difficult. There have been a lot of turbulences. There has been a lot of trials. And it still goes on as we try to manage our academics and academia and take them to the highest level of professional management, professional attitude and professional thinking. تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے 18 طلباء اور طالبات میں سر ضیاءالدین گولڈ میڈل ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین عمران احمد خان کے ہمراہ تابش میر، سٹی 21۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے بھی سخت فیصلے لینا شروع کر دیے۔ نجی اسکول کے ارد گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے بعد میٹرک بورڈ کراچی نے بھی شاہین پبلک اسکول کی رجسٹریشن معطل کر دی ہے، جس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس سے قبل ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سندھ رفیہ جاوید ملا کی جانب سے شاہین پبلک اسکول کے 2 کیمپس کی رجسٹریشن کو معطل کیا گیا تھا۔ زائد فیس وصولی پر اسکول کے خلاف شکایات موصول ہونے پر رجسٹریشن معطل کی گئی تھی، تاہم اب ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے رجسٹریشن مکمل طور پر معطل ہونے پر اسکول میں زیر تعلیم طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ سٹی وارڈن نے رمضان کنٹیجنسی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے، مگر سٹی وارڈن کو گزشتہ برس کے دوران ڈیوٹی افطاری الاؤنس تاحال نہیں ملا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ رمضان المبارک کنٹیجنسی پلان کے تحت شہر کے 92 مقامات پر سٹی وارڈن میں ڈیوٹیاں کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شہباز علی کے مطابق رمضان کے 3 عشروں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ کراچی کے عوام کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 92 مقامات پر جو سٹی وارڈن اپنے فرائض انجام دیں گے، جن میں 15 سے زائد بڑی مساجد ہیں۔ سٹی وارڈن رمضان کنٹیجنسی پلان پر کام کرنے کو تیار ہیں، مگر کہتے ہیں الاؤنس نہ ملنے پر وہ افطاری کے لیے خدا ترس شہریوں کے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔ کوئی کھجور دے گیا، کوئی پانی دے گیا، کوئی کولڈ ڈرنک دے گیا، اسی طریقے سے ہم روڈوں پہ جو نا جیسے روزہ ہوتا تھا ویسے ہی کھول لیتے تھے۔ ہمارا مطالبہ اور ہماری گزارش یہ ہے کہ سٹی وارڈن ڈپارٹمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب اور ڈائریکٹر سٹی وارڈنز ہے کہ ہمیں افطاری کے پیسے دیے جائیں۔ رمضان المبارک میں سخت گرمی میں دن بھر ٹریفک کنٹرول کرنے والے سٹی وارڈن کو پچھلے سال بھی افطاری الاؤنس ادائیگی نہیں کی گئی، جس سے اہلکاروں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ ناظرین، شہریوں کے ساتھ آن لائن فائنینشیل فراڈ کی شکایات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ فراڈ میں ملوث ملزمان کی دور دراز علاقوں میں موجودگی کے باعث FIA سائبر کرائم کو ملزمان کی گرفتاری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آن لائن فائنینشیل فراڈ کے حوالے سے FIA سائبر کرائم ونگ ساؤتھ کے ڈائریکٹر آپریشنز عاصم خان نے کہا ہے کہ فیملی ایشوز پر مبنی شکایات میں کارروائی کی شرح 100% ہے۔ آن لائن فراڈ کے حوالے سے کارروائی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جو فروری کے مہینے کے اندر جو ہماری کمپلین کراچی کے اندر رجسٹر ہوئی ہیں وہ 1325 کمپلینٹس رجسٹر ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ حد تک انکوائریز میں کنورٹ ہوئی ہیں اور کیسز کے اندر ہوئی ہیں۔ اور کیسز کے اندر ہماری جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بڑی ایفرٹ کے ساتھ ہمیں اور ہمارا فوکس بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو فیملی ایشوز سے جو سیکشن 21-22 ہم جس میں پیکا ایکٹ کے متعلق بات کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ تاکہ جلدی سے جلدی فیملیز کو اس سوشل میڈیا کے جو کرائم ہے سائبر کرائم اس کے اوپر ریلیف مل سکے۔
और इसी के साथ साथ हमारी एफ़र्ट फाइनेंशियल क्राइम में भी चलती रहती है और इसके अंदर हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि लोगों को इसमें भी बेहतर से बेहतर रिलीफ दिया जाए। मुसलसल बढ़ती एनर्जी की लागत ने सनतकारों को मुश्किलात में डाल दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर खुर्रम तारिक सईद कहते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी की कॉस्ट बड़ा मसला है। दरामदी फ्यूल से बनने वाली बिजली बहुत महंगी है। अफसोस सस्ती बिजली वाले मुतबादिल तवानाई के कई मंसूबों को NOC नहीं मिली। तवानाई की बढ़ती लागत से सनतकार शदीद परेशान। कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर खुर्रम तारिक सईद का कहना है कि मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी, करंट अकाउंट खसारा जारी है। एनर्जी की लागत ने पैदावारी लागत को मजीद बढ़ा दिया है। दरामदी बिल में पेट्रोलियम मसनूआत का 35% हिस्सा बड़ा बोझ है। वो है फॉरेन एक्सचेंज का, और उसमें आपको पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये रोल प्ले करता है मेन। अच्छा, जब आप इम्पोर्ट के बिल में देखें तो सबसे लाइन्स शेयर जो है मेरा 30-40% वो ऑयल और ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है। खुर्रम तारिक सईद बोले, पाकिस्तान में पावर जनरेशन का इन्हिसार दरामदी फ्यूल पर है, जो डॉलर महंगा होने से मुसलसल बढ़ रही है। अफसोस हुकूमतों ने मुतबादिल तवानाई के प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ने दिया। 1200 मेगावाट के मुतबादिल तवानाई के 6 रुपए फी यूनिट वाले प्रोजेक्ट को NOC ही नहीं दी गई। इस तरह के कोई 1200 के मेगावाट के प्रोजेक्ट्स थे जिनको नेपरा ने 2 साल पहले 3.5 सेंट का, जो उस वक्त के 6 रुपये थे, 6 रुपये का टैरिफ दिया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं जाने दिया। पिछली गवर्नमेंट ने, उससे पहले जो 2 गवर्नमेंट्स थी, विंड और सोलर को। सनतकार कहते हैं मुल्क में ज्यादा बिजली जरूर होगी लेकिन महंगी बहुत है। अगर एनर्जी बास्केट में सस्ती बिजली शामिल होगी तो एनर्जी कास्ट खुद कम हो जाएगी। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची के निजी होटल में दी प्रोफेशनल नेटवर्क के ताउन से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट का इनकाद किया गया। इवेंट में इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल समेत कॉरपोरेट सेक्टर और NGOs के अफराद ने भी शिरकत की है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कॉर्पोरेट सेक्टर और NGOs को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए दी प्रोफेशनल नेटवर्क की अहम काविश। दी प्रोफेशनल नेटवर्क के ताउन से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट से चेयरमैन पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम कलीम फारूकी, मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल इंडोनेशिया डॉक्टर जॉन ने भी खिताब किया। CEO प्रोफेशनल नेटवर्क महमूद तरीन बोले, NGOs आवाम की खिदमत करती हैं, उनके फंड्स को कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा करता है। हर साल की तरह इस साल भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। समिट में 100 के करीब कंपनीज ने शिरकत की। हर साल हम इस कॉन्फ्रेंस को करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज और NGOs को एक जगह जमा किया जाए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अपनी पार्टनरशिप्स को प्लान कर सकें। नेक्स्ट ईयर के लिए जो उनके बजट्स हैं उन बजट्स का एलोकेशन हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस साल भी हर साल की तरह बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। इवेंट ऑर्गेनाइजर अतीकुर रहमान ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंक, पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज आगे आएँ और सोशल वर्क को बढ़ाएं। आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए डिज़ाइन की गई है कि ये लोगों को तरकीब दी जाए कि कॉर्पोरेट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज़ आगे आएँ और सोशल वर्क को अपने ज़्यादा बढ़ाएं। सिर्फ सैलाब में मदद करना नहीं है बल्कि लोगों, जैसे मैं थैलेसीमिया के लिए काम करता हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम पाकिस्तान से थैलेसीमिया को कैसे मिटाएं। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट में पैनल डिस्कशन का भी इनकाद किया गया। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। अदालती हुक्म के बाद कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट में लगाई गई रुकावटें हटा दी गई हैं। ब्रांस रोड और इसके अतराफ में रहने वाले शहरी इस फैसले पर अमल दरामद होने को कैसे देखते हैं, जानते हैं अक्सा शाहिद से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बताइएगा अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंस रोड फ्रेस्को चौक पर, जहाँ जो है वो चंद रोज़ पहले एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से बाकायदा फूड स्ट्रीट को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया गया था। लिहाजा चंद रोज़ पहले ही जो है वो ऑर्डर मनसूख कर दिया गया और अब आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि जो है वो शाहराहों को जो है वो बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक जो है वो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा यहाँ के रिहायशियों को जो है वो बंस रोड बंद होने से किन मुश्किलात को, किन परेशानियों का सामना था, ये आपको यहाँ के रिहायशियों से ही सुनवाते हैं। जी सर, आप मुझे बताएं कि जो 7-7:30 बजे के बाद जो यहाँ पर एक बंस रोड का एहतमाम होता था, तो उससे आपको क्या परेशानी थी? नहीं बेटा, 7-8 नहीं, तो 8 बजे का टाइम था, लेकिन ये 6 बजे से लाके ये लोग बंद कर दिया करते थे और इतना रश यहाँ हो जाता था, इतना शोर शराबा, पूरा एक पैदल चलने का रास्ता नहीं। हमारे घर की फैमिलीज अगर आ रही हैं तो वो रास्ते से आ नहीं सकती हैं। इतना ज़्यादा रश था, इतनी परेशानी थी और शोर की वजह से ज़िंदगी अजाब हमारी हुई भी थी। ये शुक्र है कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अल्लाह करे ये मुस्तकिल रहे और अगर ये महीने 2 महीने के बाद फिर खुल गया तो नई मुसीबत में हम भरे जाएंगे। जी आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा अल्लाह का शुक्र है, मैं कोर्ट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कोर्ट ने ऑर्डर करे। ये बहुत अच्छे ऑर्डर हैं क्योंकि मेरी वालदा बीमार रहती हैं, रात को 3-3, 4-4 बजे तक
शोर रहता है। फिर ऑटो में उनको मैं लेके आता हूँ, ऑटो अंदर नहीं जाने दिया जाता। क्या भले रिहायशी आप अपनी वालदा को रोड पर उतारते हैं, जरूर उतारते हैं, चौक पर उतारते हैं, पैदल लेके जाएँ यहाँ से। 70-75 साल की उनकी उम्र है बेचारी की, 70 साल की उम्र में वो पैदल कैसे जाएंगी? लेडीज़, ज़ईफ़ लोग जा ही नहीं पाते घरों पे। हम लोग, एम्बुलेंस हमारी आनी है तो वो अंदर नहीं जा सकती है। पता नहीं कौन कौन यहाँ ड्यूटियाँ देते हैं, वो अंदर जाने ही नहीं देते हैं। आप उनको शनाख्ती कार्ड दिखाते रहो कि हम यहाँ के रिहायशी हैं। बड़ी अजीब मुसीबत में फंस गए थे। अल्लाह का शुक्र है ये मामला हल हो गया, लेकिन ये अगर मुस्तकिल रहेगा तो हम खुश हैं, वरना फिर नई मुसीबत में फंस जाएंगे। जी, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जो यहाँ के रहायशी थे उनको बाकायदा जो है वो पूरी सिक्योरिटी चेकिंग करवानी पड़ती थी कि शनाख्ती कार्ड है, लिहाजा वो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ पर रहते हैं। एम्बुलेंस हो या कोई भी बीमार ज़ईफ़ हो उसको भी जाने नहीं दिया जाता था। बाकायदा यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता था, सिक्योरिटी लगा दी जाती थी कि कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती। लिहाजा मेरे कैमरामैन फरहान आबिद भी अगर आपको दिखाएं कि जो बंस रोड के ऊपर बैनर लगा होता था वो भी हटा दिया गया है। यहाँ के शहरी जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि सड़कों को बहाल कर दिया गया है। साथ ही जो है वो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि जो दुकानें हैं अब उन पे जो है वो फुटपाथ पे रश नज़र आ रहा है, बजाय जो शहरी बैठ के खाते थे और एहतमाम से अपनी गेट टुगेदर यहाँ पे करते थे, वो सारा एहतमाम जो है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। शाहराएं जो वो बहाल कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आक्सा, आप हमें अपडेट कर रही थी। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने खतरे की घंटी बजाते हुए एक दिन हड़ताल की कॉल दे दी। वाइस चेयरमैन कहते हैं हुकूमत आलमी एयरलाइंस को 6 माह से रकूम अदा नहीं कर सकी, जिसके बाइस एयर ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। हुकूमत इस अहम इंडस्ट्री को तबाह होने से बचाए। समर अब्बास की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने एयर ऑपरेशन बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। साबिक चेयरमैन नदीम शरीफ ने डॉलर के बहरान संगीन होने पर तशवीश का इजहार किया। कराची ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हुकूमत ने आलमी एयरलाइन को 6 माह से रकूम ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। गवर्नमेंट की तरफ से बाहर की जितनी बैनुल अक़वामी एयरलाइंस हैं उनके पैसे जब नहीं जा रहे तो उन्होंने कुछ अरसे से अपनी सेल यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए, टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए महंगी कर दी है और पोर्टल पर उन्होंने किराए अपने सस्ते कर दिए। हमें ख़तरा है कि पोर्टल के बाद जो है ना कहीं ऑपरेशंस की कमी होने लग जाए, फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन को सस्पेंड भी कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू आइटा $1 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, $1 बिलियन की, और 3 महीने पहले की रिपोर्ट है आइटा की, $225 मिलियन एयरलाइनों के फंसे हुए हैं। अब जो 3 महीने अभी जो सेल हुई है उसमें और मजीद इसमें इजाफा होगा। वाइस चेयरमैन मोहम्मद रजा ने मसाइल हल न होने पर अलामती हड़ताल की भी धमकी दे दी। कहा कि मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर इसहाक डार को मुतादिद खत लिखे, ताहम कोई सुनवाई न हुई। पहले एक एयरलाइन ने बंद करी, फिर दूसरी मेजर एयरलाइन ने बंद कर दी। नेक्स्ट उसमें यह है कि फ्रीक्वेंसीज हम देख रहे हैं कि कम होनी शुरू हो गई हैं। तो थर्ड स्टेप में यही होगा कि जब फेयर हाई हो गए, फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो गई है, तो नेक्स्ट क्या रह जाता है? फिर बंद होना रह जाता है फिर वो अल्टीमेटली। ओहदेदारान ने मजीद कहा कि सिविल एविएशन के पास भी मसले का कोई हल नहीं। तरसीलात ज़र की किल्लत के बायस आलमी एयरलाइन ने किरायों में भी खुद साख्ता बड़ा इजाफा कर रखा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह होने से बचाए। खुसूसी अफराद का सिंध असम्बली के गेट नंबर 2 के सामने एहतजाज जारी है। खुसूसी अफराद सड़क पर धरना दिए बैठे हैं और मुतालबात ना मानने तक एहतजाज जारी रखने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली के गेट नंबर 2 के सामने खुसूसी अफराद का एहतजाज बदस्तूर जारी है। ये जो है 4 घंटे कबल यहाँ पर एहतजाज करके यहाँ पर पहुँचे थे सिंध असम्बली के गेट के सामने, और सिंध असम्बली के गेट के सामने उन्होंने जो सड़क पर लेट कर धरना दे रखा है। इनका मुतालबा एक ही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो इनका मखसूस कोटा है खुसूसी अफराद का, उसके तहत इनको मुख्तलिफ सरकारी इदारों में मुलाजमती दी जाए। जब तक मुलाजमती नहीं दी जाएंगी तब तक इनका एहतजाज जो है बदस्तूर यहाँ पर जारी रहेगा। इनका ये भी एक ही मुतालबा है कि अदालत के हुक्म के बावजूद सिंध हुकूमत इनको मुलाजमतें नहीं दे रही है, जिसके बायस ये फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनके पास मुलाजमत नहीं है, खुसूसी अफराद है, जिसके बाद सिंध हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो दे और इनका मसला हल करे। इस वक्त जानते हैं यहाँ पर मौजूद है खुसूसी नौजवान, उनसे जानते हैं कि आप कब तक जो आपका एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा या आपका इरादा क्या आगे का? हमारा इरादा यही है सर, अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, यहाँ पर लड़के सुबह से बैठे हुए भूखे प्यासे, आवाम परेशान हो रही है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, अभी तक कोई भी पूछने के लिए नहीं आया। हमारा मुतालबा ये है कि तमाम ब्लाइंड हजरात जो है उनको इग्नोर किया जाता है, इनको नौकरी दिया जाए और इनको घर भेजा जाए। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती, हम एजेंडा दे चुके हैं, बार बार जा चुके हैं,
اگر نہیں مانتی تو سر ہم ریڈ زون کی طرف جائیں گے, CM ہاؤس کی طرف جائیں گے اور پوری رات یہیں پر گزاریں گے. جی بالکل, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت کو انہوں نے تحریری طور پر درخواست دے رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے. اگر ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو ان کا اگلا جو احتجاج ہوگا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف ہوگا, ریڈ زون کی طرف ہوگا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک حکومت مطالبہ نہیں مانے گی تب تک ان کا احتجاج جو ہے بدستور جاری رہے گا.